So you may be learn through this like B for Babur, H for Humayun, A for Akbar, J for Jagir, S for Saja, A for Aurangzeb. Okay. So in this we'll discuss. So there is the interesting, there is a one TV serial is going on the channels, that is the Akbar, Jodha Akbar. So in this you can see the how they start the rule. There is the lot of competition for the rule ke for a Taj or rule. Taj means the who became a ruler. So there is the competition or no, fight between the father and the son. There is the fight between the among the their children. So like this, there is the due to the competition this happens in Mughal dynasty. So Mughal dynasty may be end in that time after Humayun. Humayun, but there was a break between the Mughal dynasty. Or after this, we may be possible. Yes, a new Akbar, but after that, maybe Mughal dynasty possibility ki they may be end here. But when Humayun reinstalled himself by help of the Safavid से उसने अपने आप को reinstall किया. Again, he attacked on the son of Shershah Suri, or later he installed the kingdom inside India. After Humayun death, it continued ruled by the Akbar. After Akbar death, it ruled followed by the Jagir, or Jagir also kept, Jagir after death, Saja or Salim Saja, and later on it is Aurangzeb. So इनमें से one ऐसा ruler है Aurangzeb against the religion tolerance. मतलब the religion और secularism को follow नहीं करता था. Who against the specific religion, who against the. So what story we have discussed in this topic. If Babur stole the Mughal dynasty, or it is followed by the Humayun. Humayun ने बहुत हार्ड वर्क किया और what a struggle faced by Humayun, no one is faced. मैं अभी बताऊंगा आपको डिटेल में कि how he faced the both side challenges from the India side and from the Afghan side. दोनों साइड से बीच में बाबुर. इंडिया साइड वो अटैक ऑन द बाबुर शेरशाह सूरी, और इधर से किसने अटैक किया? अफगान रूलर्स. हु वाज द अफगान रूलर? आप पदर ऑफ बाबर. आप पदर ऑफ बाबर मतलब व्हाट? मीनिंग ऑफ आप पदर? आप पदर मींस व्हाट? थोड़ा सा जस्ट आप बदल means what beta? आप बदल means the early time what happens ki when they attack on any kingdoms or any area or territory, so they elect their kingdoms, or later on early time in simple language we can say ki there were rulers who held the more than one queen. कितनी रानियां उनके होती थी? more than one. like तो उनसे जो suppose one male तो वो जो उनके मेन ट्यून है उससे, जैसे कि यू कैन सी इन द जोधा अकबर जो सीरियल है, तो आप देखोगे जोधा इज द मेन ट्यून. अब फिर उसके अलावा जो अदर अलग होते हैं, तो उनके जो सन होते हैं, फादर तो एक होगा बट मदर विल बी डिफरेंट. तो जो उनके सन होंगे सब सन नॉन बाय द आप बदर, उनको आप बदर कहा जाएगा. आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नोट? समझे बेटा? समझ में आया नहीं? Yes, sir. यस सर. आप बदर मतलब Yes, sir. सोतेले भाई, मतलब फादर एक है बट मदर विल बी डिफरेंट. ओके, दिस इज नोन एज द आप बदर. तो अभी ये वर्ड आएगा, दैट्स व्हाई आई विल एक्सप्लेन इट. मैंने पहले एक्सप्लेन कर दिया इसको. तो इन दिस व्हाट हैपन, तो इन द आप बदर था हुमायूं का, तो वो नहीं चाहता था कि व्हेन हुमायूं मे बी डिफीट और मे बी व्हेन शेरशाह सूरी किल द हुमायूं, तो ही बिकेम अ रूलर ऑफ एंटायर नेशन. तो वो चाहता था आप बदर इनका, तो आप बदर अफगान में रूल करता था. ओके, तो आप बदर स्टार्टिंग द अटैक फ्रॉम दैट साइड ऑन द हुमायूं. इधर से किन्होंने अटैक करना स्टार्ट किया? शेरशाह सूरी. शेरशाह सूरी ने 2 बार डिफीट किए, 2 टाइम्स. ही डिफीटेड द 2 टाइम्स हुमायूं. हुमायूं को हिस्ट्री में आयो some information I am getting from the extra information. हुमायूं is the big ruler of मुगल dynasty. मुगल dynasty का सबसे big ruler हुमायूं को माना जाता है, सबसे कमजोर, क्योंकि both side attack. Later on what happens?
It turned to the Iraq. इराक की तरफ इन्होंने टर्न किया और इराक में इनका एक फ्रेंड था सफाविद। सफाविद वो फ्रेंड था। he taken the support from the Safavid. Later on he reinstalled himself. हुमायूं ने अपने आप को reinstall किया वहां पे, अपने आर्मी को reinstall किया। But what happened? Safavid भी इनसे लास्ट में नाराज हो गया। He against the Humayun. Why the Safavid against the Humayun? Not mentioned in your book, just the information. What happens? There is a one lady inside the Safavid courtesan. जो Safavid का courtesan था, तो उसी मेंबर में से किसी की एक डॉटर होगी। तो हुमायूं has married with the his daughter. उसकी डॉटर के साथ मैरिज कर ली। किसकी? नॉट अ Safavid. Safavid courtesan. कोटेशन होता है मतलब दरबार। जो दरबार है, जैसे कि अकबर कोटेशन से कोर्ट है, कोटेशन, तो उनमें जो वर्क करने वाले हैं उनका किस वन पर्सन, उसकी डॉटर जो वन क्लोज रिलेटिव ऑफ सफाविद, तो हुमायूं हैज मैरिड विद हिम, तो सफाविद अगेंस्ट हिम। तो व्हाट हैपेंड, सफाविद के हुमायूं के साथ क्या हुआ? सफाविद से यहाँ रिस्टोर होकर रिटर्न हुआ। लेटर ऑन देयर इज द वन प्लेस प्रेजेंट इन पाकिस्तान। अब पाकिस्तान में एक जगह मिला प्रेजेंट इन पाकिस्तान, उमरकोट। दैट नेम इज द उमरकोट। तो उमरकोट में ही टेक द हेल्प फ्रॉम द वन राजपूत रूलर। राजपूत रूलर की उन्होंने हेल्प ली हुमायूं, और हुमायूं ने राजपूत रूलर की हेल्प ली थी इन उमरकोट इन प्रेजेंट डे पाकिस्तान। तो इट took the help from the Rajput rulers हुमायूं, एंड हुमायूं को बताते हैं कि अकबर की बर्थ हुई, अकबर इन दैट एरिया। तो बताते हैं कि जो चाइल्डहुड है अकबर का, वो उसी राजपूत फैमिली के उसमें हुआ है। मीन्स द कल्चर बैकग्राउंड इन राजपूत फैमिली, जो राजपूत फैमिली का बैकग्राउंड कल्चर है उसी में। तो व्हेन अकबर वाज 13 इयर्स ओल्ड, जब अकबर 13 इयर्स के थे, 13 years, अब your age is the 13 years, I hope most of की आपकी एज क्या है? 13 और 14 years है। तो you are in class 7, तो when Akbar was 13 years old, तो he became a ruler। उसको क्या किया गया? रूलर बना दिया गया। और after help of that Rajput rulers, when he again attack on where, क्योंकि इसको किस पे अटैक करना था? शेरशाह सूरी पे, जो दिल्ली का रूलर था शेरशाह सूरी। अब शेरशाह सूरी जो रूलर था, शेरशाह सूरी, अभी मैं पूरी स्टोरी आपको थ्रू द नोट्स में बताऊंगा बेटा। तो ही वांट टू अटैक हुमायूं ऑन द शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी को अटैक करना था, बट शेरशाह सूरी अर्लियर नेचुरल डेथ हो गई थी। तो जो इसका बेटा था सन, जो इनका बेटा था शेरशाह सूरी का, तो हुमायूं अटैक ऑन शेरशाह सूरी सन और रिकैप्चर द दिल्ली। दिल्ली को वापस रिकैप्चर कर लिया। अब दिल्ली टू आगरा, इन्होंने कहा था इस बार नहीं आने, आवाज आती है मेरे को यहाँ नहीं। बार 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 नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं। प्लीज अवॉइड सम डिस्टर्बेंस। बेटा सर डिस्टर्बेंस यू मस्ट बी अवॉइडेड, क्योंकि इससे आपकी प्राइवेसी भी लीक होती है। ओके, तो अवॉइड द सर। So when Akbar was the 13 years old, he became a ruler. Shershah Suri's son, जो था हुमायूं अटैक ऑन द शेरशाह सूरी, रिकैप्चर द दिल्ली, और अकबर became a ruler. So after Akbar, there is the story with the Humayun, and after Akbar want to extend his kingdom till Deccan. What page number? What happens, Siddhi dear? Siddhi beta? So when Akbar want to extend his kingdom till the southern part, south of the Deccan Plateau, Deccan area में extend करना चाहते थे। तो this story we discuss. So let's start. Babur, Humayun, Akbar, Jahangir, Shahjahan, and Aurangzeb. So see the stories. Okay. So we have to learn the full form of this. It is easy to learn. Aurangzeb, last ruler, powerful ruler.
तो these are the person who ruled on Mughal dynasty. ऐसा नहीं है कि अकबर का केवल जागीरी संता, जागीर को earlier it was known by the सलीम. ये सलीम क्यों कहा जाता है जागीर को? You know, अकबर visited the सलीम चिश्ती दरगाह और विजिट किया. तो such son is in अकबर thought gifted by the सलीम चिश्ती. तो इनका नेम बचपन में रख दिया था सलीम. तो सलीम लेटर ऑन नोन बाय द जागीर. इनका बचपन चाइल्डहुड नेम इज द सलीम. तो यही जागीर है. तो दिस इज द स्टोरी ऑफ दैट. सी द स्क्रीन शेयर जस्ट दैट. Dear, are you able to see the screen, beta? Yes, sir. Yes, sir. Okay, so let's start from the Humayun. So Babur, you know, Babur has started the rule, and we are discussing from the Humayun. So Humayun ruled between 1530 to 1540. 1530 to 1540 Humayun has ruled, or later on there is the gap between the 15 years gap, and 1550 to 1560 Humayun continued rule. So what happens during this 15 years gap? In 15 years में क्या हुआ? Who was the ruler? So you know, Sher Shah Suri was the ruler during the 15 years. So that dynasty was known as the Sher Shah Suri dynasty. So dear Humayun divided his inheritance according to the will of his father, जो Babur is gifted him, and Badr were each given a province. So he distributed the different areas to among his Badr. इन्होंने क्या किया? हुमायूं ने जो इनके आप बदर थे उन सबको भी अलग अलग किंगडम, अलग अलग एरिया रूल करने के लिए गिफ्ट किया. बट आफ्टर डेट यू नो एम्बिशन नेवर एंड. हम सोचते हैं ना कि हमारे जो एम्बिशंस होते हैं, इच्छाएं होती है, वो कभी खत्म नहीं होती. तो द एम्बिशंस ऑफ इस बदर मिर्जा कामरान. तो यू नो मिर्जा कामरान वीकेंड एंड ही वांट टू किल द हुमायूं. उसके कभी भी जो इच्छाएं थी वो खत्म नहीं हुई. द एम्बिशंस ऑफ इज बदर मिर्जा कामरान एंड वीकेंड हुमायूं कोस्ट अगेंस्ट इन द अफगान कॉम्पिटिटर्स. तो कितनी बार ही वाज अटैक ऑन हुमायूं विद द सपोर्ट ऑफ अफगान कॉम्पिटिटर. यानी जो अफगान कॉम्पिटिटर्स होते थे, यानी जो, क्योंकि यू नो दिस कंप्लीट डायनेस्टी बिलोंग फ्रॉम द अफगानिस्तान. ये जो पूरे मुगल डायनेस्टी है इंडियन नहीं बेटा, इट बिलोंग फ्रॉम द अफगानिस्तान. तो जितने और भी चाहते थे इंडिया पे रूल करना, तो उनके कॉम्पिटिशन में थे हुमायूं के में, क्योंकि जो भी रूलर होता है उसके यू नो कॉन्फ्लिक्ट और कंट्रोवर्सी तो हर जगह होती है, कॉम्पिटिशन होता है. तो दोज रूलर्स वर अगेंस्ट द हुमायूं. तो सच रूलर्स वर reorganized by the Mirza Kamran and he want to attack on the Humayus. So there was two battle fought between the Sher Khan. अब आप कहोगे सर why is the title like a शेर? तो ऐसा हिस्ट्री में बताते हैं कि he has killed the lion. इन्होंने शेर शाह सूरी ने एक बार शेर को मार दिया था. तो such title is given Sher Khan. Okay. So there was the two battle fought between the Humayun and Sher Shah Suri. One is the Chor and another one is Kannauj. So two battle and both battle, दोनों जो battle हुए between the Humayun and Sher Shah Suri, Humayun defeated by the Sher Shah Suri in both battle. तो after defeated what he has done, उसने क्या किया हुमायूं ने? तो when Humayun is defeated, तो last point forced to flee to Iran. He moved to the Iran side. फिर मैंने आपको एक स्टोरी भी बताई है very well. कि when he was returning to the Iran, तो पहले उसको लगा कि why not I should be return to my mother side, mother side. तो whenever he returned to the mother side, तो हुमायूं को जब अफगान रूलर्स मिर्जा कामरान को पता चला कि हुमायूं आ रहा है, तो फर्स्ट ही ऑफर टू द शेर शाह सूरी कि किल द हुमायूं, लेकिन उन्होंने नहीं किया ऐसा. तो यू नो वन साइड
जो फोर्स थी वो शेरशाह सूरी की थी फ्रॉम द इंडियन साइड, और अनदर वन साइड जो उसका एनिमी था, जो उसका खुद का बदल मिर्जा कामरान। तो बोथ साइड ही हैज सराउंडेड, मींस ही हैज surrounded by both sides and controlled by the one side Shershah Suri, another one side the Mirza Kamran. So later on he take a turn and turn to the Iraq side. उन्होंने क्या किया, फिर ईरान की तरफ जाना अच्छा समझा। तो ईरान में कौन था? There is the name of a friend of Humayun, that is Safavid. तो this slide is, I hope your concept is clear. Concern with this slide, beta. The next one. अब आफ्टर डेट मुगल एम्पायर मेजर कैंपेन एंड इवेंट्स विल डिस्कस। तो एंड ऑफ द मुगल एम्पायर, क्या आपको लगता है कि 1540 के बाद मुगल एम्पायर का एंड हो गया? नो, नहीं हुआ। बिकॉज क्योंकि 1540 में मे भी पॉसिबिलिटी हो सकता था, बट हुमायूं को मुगल मुगल डायनेस्टी का सबसे वीक रूलर मानते हैं, बट मैं मानता हूं कि he is the such person who put lot of efforts, जिसने वापस हारने के बाद में अगेंस्ट स्ट्रगल किया और रिकैप्चर द दिल्ली, वापस दिल्ली को रिकैप्चर किया। तो हुमायूं रिसीव्ड हेल्प फ्रॉम द सफावी शाह जो इराक रूलर थे, ईरान रूलर, it took the help from the Safavid. He recaptured Delhi in 1555 किससे? सिकंदर शाह सूरी। सिकंदर शाह सूरी image is given, or who was the Sikandar Shah Suri? Sikandar Shah Suri is the son of Shershah Suri. Shershah Suri के बेटे हैं ये, okay? बताते हैं in 1556 there is the library constructed by the Humayun, और लेटर ऑन इसी लाइब्रेरी का नेम चेंज करके दिल्ली में शेरशाह के नेम पे रख दिया गया, और अभी भी ये दिल्ली के अंदर ही मॉन्यूमेंट्स। तो इन दिस लाइब्रेरी बताते हैं कि that was the time of the नमाज और प्रेयर जो करते हैं। तो ड्यूरिंग 1556 आफ्टर 1 ईयर 1555 ही रिकैप्चर द दिल्ली, 1555 में रिकैप्चर किया, और इन 1556 हुमायूं डाइड इन एक्सीडेंट इज लाइब्रेरी। बताते हैं हुमायूं को बहुत ग्रेट और मे बी द ही वाज लर्नेड पर्सन, सीखने की बहुत इच्छा थी, पढ़ने की। तो व्हेन ही वाज इनसाइड द लाइब्रेरी, तो ही फॉल्स डाउन फ्रॉम द लाइब्रेरी स्टेयर्स एंड हुमायूं natural death हो गया। तो this is the complete story of the Humayun. See the next one. After Humayun, Akbar. So we'll discuss about the Mughal Emperor Akbar. So Akbar से concern I want to discuss कि you are daily watching there is the one serial, और जोधा अकबर मूवी भी आई थी। तो in such movie you have seen one such person. तो ये जो पर्सन है मूवी से लिया गया है, नॉट अ रियल इमेज। ये रियल इमेज नहीं है, बेरम खान। तो जिसको खान बाबा बोला जाता है ना, मूवी आप देखते हो, खान बाबा की जो बेटी है सलीमा बेगम, सीरियल बता रहा हूँ बेटा, डोंट माइंड। तो अकबर जो अभी सीरियल आता है, तो उनमें जो खान बाबा की जो बेटी कहा जाता है, बेरम खान वाज द खान बाबा। तो बेरम खान सच पर्सन हु कंट्रोल द एंटायर एडमिनिस्ट्रेशन, यानी इनकी गाइडलाइन में अकबर वाज द 13 इयर्स ओल्ड। अब प्लीज, अकबर वाज द 13 इयर्स ओल्ड ड्यूरिंग डेट टाइम। अरे व्हाई बैकग्राउंड साउंड इज कमिंग हियर। तो अकबर वाज द 13 इयर्स ओल्ड, और he can't, or he unable to rule, or maybe he doesn't know about the administration part. तो खान बाबा या बेरम खान was the person who played the big role in administration of Akbar. तो first two ruler Babur and Humayun, first two ruler established the Mughal kingdom inside India, and Akbar played the important role for administration. How to Mughal dynasty will be become a good administration. तो Akbar play important role for administration, and Jahangir play the important role for art, drawing, dance, okay, and Shahjahan play important role for the architecture. Or Aurangzeb, son of Shahjahan, play very important role to destroy all such historical palace. जो हिस्टोरिकल प्लेस है उन सब चीजों को डिस्ट्रॉय करने में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्ले किया है औरंगजेब। तो दिस इज द स्टोरी। तो
So there is a blue color kingdom is given. So early time that was the kingdom comes under the Mughal, but those given in yellow color. Are you hearing my word dear? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. So Yes, sir. such a boundary is given in yellow color na. So this was the area which was extended by the Akbar. So this was the area which was the extended by the Akbar. तो ये वाला वो एरिया है जो अकबर ने अपने किंगडम को एक्सटेंड किया, फैलाया. ओके, तो दिस वाज द एरिया एक्सटेंड बाय द अकबर. Okay, so this is the campaign and events about Jahangir. So first we'll discuss about the Akbar, later on we'll discuss about the Jahangir. Yes, Mughal Emperor Akbar. So in these campaign events, जो important events given in your book जो दे रखी है उसको मैंने थोड़ा इस फॉर्म में लिया है और it easy to clear your concept. तो अकबर रूल्ड फ्रॉम 1556 क्योंकि 1556 हुमायूं died due to the accident of library and 1556 अकबर became a ruler और he has ruled the 1605. तो ऐसा बताते हैं कि औरंगजेब एंड अकबर were the such ruler those ruled the for a long period for Mughal dynasty 49 years approximately इन्होंने रूल किया औरंगजेब एंड अकबर. तो these are the two rulers who ruled for a long period. तो अकबर was the 13 years old when he became emperor. अब we have divided Akbar's policy into three parts. तो first, yes. Yes, this is the first policy of Akbar. So, just a wait. This is the policy of. Sorry, dear, sorry. Yes, 1556 to 1570. So this was the time we have divided the Akbar period into three parts. Today we will discuss about Akbar, doesn't matter. Okay, you are feeling boring, I hope. So you know 1556 to 1570 Akbar has ruled, became independent of the regent Behram Khan. So he was earlier worked under the Behram Khan. मतलब work under the Behram Khan, it means not a rule by the Behram Khan. Behram Khan was the supporters only. Behram Khan was the supporter. जैसे भी प्राइम मिनिस्टर होते हैं तो मिनिस्टर्स आर सपोर्टर्स. ऐसा नहीं मिनिस्टर सपोर्ट करते हैं ओनली. हेड ऑफ कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर ही होता है. तो इंडिपेंडेंट अंडर द Behram Khan एंड लॉन्चेस द मिलिट्री कैंपेन इन द सूरीज. अफगान रूलर को डिफीट किया, सूरीज को डिफीट किया. ये अटैक ऑन द मालवा. मैं मालवा भी आपको मैप में बताता हूँ. वेयर इज द मालवा? मालवा प्लेटू, गोंडवाना लैंड आल्सो. ये डिफीटेड गोंडवाना इन कर्नाटका और सच. मिर्जा हकीम, आप बदर ऑफ द मिर्जा हकीम, ये डिफीटेड. ओके. और 1570 to 1605 मिलिट्री कैंपेन इन गुजरात वर followed by the campaign and he extend his kingdom till Gujarat, east of Bihar also, Bengal also, Odisha also, and complications created by Mirza Hakim during the 1579 to 1580. अब हम देखते हैं कि मुगल डायनेस्टी ऐसी नहीं है बेटा. इट हैपेंस इन एवरीवेयर. कंपटीशन हर जगह होता है. आपके ब्रदर, आपके रिलेटिव्स, व्हेन यू बिकम अ प्रॉस्पियर्स और रिच, जब भी हम होते हैं तो हमारे यू नो ऑटोमेटिकली कॉम्पिटिटर्स विल बी बॉर्न, पैदा हो जाते हैं. तो कॉम्प्लिकेशंस क्रिएटेड बाय द मिर्जा हकीम ड्यूरिंग 1579 to 58 and how they created the confliction. Yes. अब कैसे यू नो अभी देखते हो आप जो उनके आप बदलते मिर्जा हकीम अकबर के, तो ये गिवन द किंगडम, फिर भी वो चाहता था कि आई बिकम ए रूलर. तो यू कैन सी इन द सीरियल. तो 1579 to 1580 expansion in northwest, he attack on the Kandahar, Kashmir, Kabul and campaign in Deccan till Deccan मतलब southern part of India
एंड रेबेलियन ऑफ सलीम। अब देखिए यहाँ इनका जो बेटा था जागीर, उसने रेबेलियन स्टार्ट कर दिया किसके अगेंस्ट? अकबर के अगेंस्ट। व्हाई? क्योंकि हर किसी को जल्दी रहती है रूल करने की, ही वांट टू बिकम ए रूलर, उसको रूलर बनना था। तो मुगल डायनेस्टी में देखते हैं कि यहाँ इनके कॉम्पिटिटर सबसे ज्यादा खतरा किनसे था? फ्रॉम देयर रिलेटिव, इनके रिलेटिव और इनके क्लोज ब्लड रिलेशन से। तो जबकि अकबर वाज ए सच रूलर हु हैज अलॉटेड द किंगडम फॉर द डिफरेंट पर्सन, सबके लिए उसने किंगडम्स अलॉटेड कर रखा था अकबर ने। तो अकबर वाज द सच पर्सन हु हैज अलॉटेड द किंगडम फॉर ए डिफरेंट पर्सन, बट आफ्टर दैट देयर वर मेनी कॉम्पिटिटर्स हु वांट टू अटैक ऑन द अकबर। तो अकबर जैसा what has done, अकबर के बेटे ने जैसे जागीर has started the rebellion against the अकबर, तो as it done by the शाहजहां with the जागीर, जैसा आप करोगे वैसा आपका बेटा रिटर्न करेगा आपको। जैसे सपोज वी आर नॉट गिविंग द इम्पोर्टेंस टू आवर पेरेंट्स, तो माय चाइल्ड विल नॉट गिव एनी इम्पोर्टेंस टू अस या मी, मुझे नहीं देगा, क्योंकि व्हाट इज लर्निंग व्हाट इज वाचिंग, वो जो देख रहा है ना उसी से लर्न कर रहा है। हम हमारे ग्रैंड पेरेंट्स या हमारे एल्डर्स का रेस्पेक्ट नहीं करेंगे तो हमारी जनरेशन हमारा रेस्पेक्ट नहीं करेगी। तो दिस हैपेंस एज इट जागीर, व्हाट जागीर हैज डन विद द अकबर एज इट डन बाय द शाहजहां विद जागीर। तो डियर स्टूडेंट, टुडे वी हैव डिस्कस अबाउट द टिल अकबर। तो आज हमने अकबर तक डिस्कस किया। आई होप थोड़ा एंजॉय हुआ होगा कल से। और इफ यू फील एनी बोरिंग यू मे बी आस्क, इफ यू एनी